شخص سے شخصیت بننے کی کہانی سنیں گے آپ خود انہی کی زبانی۔ آج ہمارے ساتھ فیس ٹو فیس میں ہیں 100 سے بھی زیادہ کتابوں کے رائٹر اور مشہور استاد شاعر جناب ناوک حمزہ پوری۔ تسنیم کے ہم لال نہ گوہر کی طرح ہیں، پتھر ہیں تو بنیاد کے پتھر کی طرح ہیں، کیسے نظر انداز کرے گا کوئی ہم کو، ہر راہ میں ہم میل کے پتھر کی طرح ہیں۔ جناب ناوک حمزہ پوری کا یہ شعر خود ہی ان کی شخصیت کو بیاں کرتا ہے۔ اردو فارسی ادب کے روشن مینار مشہور استاد شاعر جناب ناوک حمزہ پوری کا جنم 12 اپریل 1933 کو شیرگھاٹی کے حمزہ پور میں ہوا۔ 100 سے بھی زیادہ کتابوں کے رائٹر ہیں اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا اردو میں ربائی کی آبرو کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا نام غلام السیدین ہے۔ ان کے والد علامہ قوس حمزہ پوری نے انہیں ناوک حمزہ پوری کا تخلص دیا تھا۔ ابتدائی تعلیم والد والدہ سے ملی، پھر پرائمری اسکول تک اپنے ماموں مولوی سید جمیل سے حاصل کی۔ اس کے بعد مڈل اسکول تک کی پڑھائی بھدیا میں ہوئی۔ 1953 میں رنگلال ہائی اسکول شیرگھاٹی سے میٹرک پاس کیا۔ آئیے گیا کالج گیا سے کرنے کے بعد بھاگلپور یونیورسٹی، رانچی یونیورسٹی اور مگدھ یونیورسٹی سے ایم اے تک کی پڑھائی پوری کی۔ نرکٹیا بودھ گیا کے حیات علی کی صاحبزادی سیدہ حمیرہ خاتون سے 1953 میں ان کی شادی ہوئی اور پیشے سے بطور ٹیچر تمام عمر اپنی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ جناب ناوک حمزہ پوری نے شاعری کا آغاز 1945 سے کیا، البتہ چھپنے چھپانے کا سلسلہ 1954 میں شروع ہوا۔ ان کی پہلی نظم کلکتہ کے نیوز پیپر آبشار میں شائع ہوئی۔ نثر نگاری کی ابتدا 1960 میں ہوئی اور پہلا مضمون گیا سے چھپنے والے سہیل نام کے اردو میگزین میں شائع ہوا۔ کچھ وقت تک صحافت سے بھی وابستہ رہے۔ ان کی پہلی کتاب جذبات ناوک 1956 میں آئی اور پھر اپنے والد محترم علامہ غلام رسول قوس حمزہ پوری کی فارسی رباعیات کا اردو ترجمہ کر کے 1968 میں انہوں نے قوس قزح نام سے کتاب شائع کرائی۔ اردو ادب کی کوئی ایسی صنف باقی نہیں جس پر انہوں نے طبع آزمائی نہ کی ہو۔ نظم، کہانی، افسانہ، ناول، انشائیے، مکالمے، کالم نگاری، مرثیہ، قصیدے، ربائی، غزل سب کچھ لکھا۔ حمد اور نعتیہ شاعری سے متاثر ہو کر پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے انہیں شاعر اسلام کا لقب بھی عطا کیا تھا۔ جناب ناوک حمزہ پوری کئی بار انعام و اعزاز سے نوازے جاتے رہے ہیں۔ 25 فروری 2021 کو بہار سرکار کے اردو ندیشالیہ کے ذریعہ فروغ اردو ایوارڈ ملا۔ 2009 میں بہار سرکار کی طرف سے ہی زبان و ادب کی خدمات کے لیے عبدالقیوم انصاری ایوارڈ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کے ہاتھوں دیا گیا تھا۔ 2011 میں اردو کونسل ہند کے ذریعہ شاہ مشتاق ایوارڈ جموں کشمیر کے ایکس چیف منسٹر فاروق عبداللہ نے دیا تھا۔ ساتھ ہی فارسی غزل گوئی کے لیے پرسین اکیڈمی لکھنؤ اور دوہوں کا مجموعہ سوغات کے لیے عبدالرحیم خانخانہ نیشنل ایوارڈ کے علاوہ بچوں کے ادب پر کام کرنے کے لیے بہار، بنگال اور اتر پردیش سرکار کی طرف سے بھی انہیں ایوارڈ ملتا رہا ہے۔ وہیں آدھے درجن لوگوں نے ان کی حیات و خدمات پر اب تک پی ایچ ڈی کی ڈگری اور سند بھی حاصل کی ہے۔ بہرحال شعر و شاعری یا یوں کہیے کہ ادبی دنیا میں ناوک حمزہ پوری اپنی ذات میں ایک انجمن ہی نہیں، ایک دبستان ہیں۔ فیس ٹو فیس وتھ عمران علی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں کئی انسنی کہانی خود انہی کی زبانی۔ ناوک صاحب، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ لوگ مشتاق ہیں سننے کو کہانی میری، اور پھر ضد کے سنیں گے وہ زبانی میری۔ کہ حضرت میر سے کہہ دے کوئی جا کر ناوک، حضرت میر سے کہہ دے کوئی جا کر ناوک، دیکھ لیں آ کے طبیعت کی روانی میری۔ سر، آپ دیش دنیا میں ناوک حمزہ پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو سید محمد غلام السیدین سے ناوک حمزہ پوری بننے کی کیا کہانی ہے؟ آپ نے یہ تخلص فن شاعری کی شروعاتی دنوں میں رکھی یا کچھ شہرت مل چکی تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ والد کا نام تھا قوس، اور شاعری میں تخلص جس کو کہتے ہیں، نام تو غلام رسول تھا۔
لیکن شاعری میں جو تخلص کرتے تھے اپ نام جو تھا جی وہ تھا قوس. اور قوس کہتے ہیں جو کمان کا وہ یہ حصہ ہوتا ہے اسی جی سمجھ پاتا ہاں ہے. جس میں تیر لگایا جاتا ہے وہ کمان جو راؤنڈ سا ہوتا ہاں ہے راؤنڈ جو half round ہوتا ہے, ہاں راؤنڈ جو ہوتا ہے, جی، چاہے جی. لکڑی کا چاہے لوہے کا جی، چاہے جی. جس چیز کا بنا کمان جو راؤنڈ ہوتا جی. ہے وہ ہے قوس. قوس. تو اس کمان کے لیے ضرورت تیر کی تھی. جی اور اتنی عقل ہم کو اس وقت نہیں ہوئی تھی کہ ہم والد کا نام قوس ہے کمان. جی. قوس مانے کمان کہتے ہیں. جی تو والد نے کیا کہ قوس کے ساتھ ایک تو کمان کر دیا جی کہ ان کے نام کے تخلص کر لو. یہ سب کہا کوئی ادھر ادھر کرتے ہیں. مشورہ انہوں نے ہی دیا. ہاں مشورہ انہوں نے دیا. جی تو یہ انہی کا ہے. اور کمان میں تیر لگا دو. ہاں ہاں کمان مطلب ہوتی ہے. رنگلال ہائی اسکول میں جی. ہر 2-4-10 مہینے پر ایک نشست ہو جاتی تھی. جی. تو اس میں پڑھنے جاتے تھے. تو جب ہم کو بھی ہوش حواس ہو گیا تو ہاتھ پکڑ کے ہم کو بھی لے جانے لگے. تو 1-8-2-4 شعر لکھ کے دے دیتے تھے, پڑھ لیجو. تو اسی میں جب ناوک لکھ دیا انہوں نے تو ہم سمجھ گئے کہ اب ہم کو ناوک لکھنا. سر یہ بتائیے کہ آپ نے شعرگوئی کی شروعات کب سے کی؟ بھائی ایسا ہے کہ اس میں میری اپنی کوئی بڑی محنت نہیں ہے, بلکہ یہ خاندان کا جیسے لوگوں کو ترکہ ملتا ہے ویسے ہی یہ باپ دادا کی دولت کا ترکہ ہمیں مل گیا. اور ترکہ بھی اس طرح مل گیا کہ بڑے بھائی میرے سید مقبول احمد جی والد کے سامنے بولتے تک نہیں تھے جی ہیبت سے. جی اور اس لیے شعر و شاعری سے ان کو زندگی بھر کوئی واسطہ جی نہ ہو سکا. اور پھر جوان سالی ہی میں انتقال ہو گیا. جی میرا حال یہ رہا ہے کہ ڈرتے تو ہم بھی تھے. بڑے بڑے باہر کے بھی لوگ آتے تھے, اس میں بہت بڑے بڑے پوسٹ والے بھی آنے والے لوگ جو جانتے تھے ان کو, ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے چاہے افسر ہی کیوں نہیں آئے. ہائی اسکول شیرگھاٹی رنگلال ہائی اسکول میں ایڈمیشن ہوا جی تو وہاں کے شعراء جو اردو کے تھے, فارسی کے تھے, اپنا یہ تھے, کچھ نہ کچھ کہتے تھے. تو اسکول سے جب گھر آتے تھے تو وہ اپنا چیز لکھ کے دے دیتے تھے کہ ذرا سا ابا کو دکھلا کے صحیح کروا لیجیے اور لے آئیے. تو ان کی جو چیز لاتے تھے, اور اس وقت 6 کلاس میں پہنچے تھے, جی لاتے تھے تو بیچ میں راستے میں ان کا پرزہ کھول کے دیکھتے تھے, لفافہ کو دیکھا کون چیز لکھی. جی تو دیکھتے تھے کہ ہاں یہ سب سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شعر ہے, اشعار ہیں ان کے, اور یہ صحیح کرنے کے لیے دیے ہیں. تو جانتے تھے, کھول کے بتایا تھا ان لوگوں نے بھی. تو اس کو جو ہم پڑھتے تھے اور کہیں پر میرا دل کھٹکتا تھا کہ یہاں پر ٹھیک نہیں ہے, جی اس میں 1-2 جگہ ہم اپنے قلم سے اس کو درست کر دیتے تھے. خود ہی اصلاح کر دیتے تھے, والد کے لیے دیا جاتا تھا اور اصلاح آپ کر دیتے تھے. 1-2 جگہ کر دیا تو زیادہ ہو گیا تھا. اب زیادہ ہو گیا تھا تو پھر میری تحریر میں کیا ہوا, لے جا کے ان کو دیں گے تو وہ استاد لوگ تو سمجھ جاتے کہ یہ ان کا لکھا ہوا ہے, تو والد لکھا ہوا ہے, یعنی ان کی تحریر جانتے تھے. ہاں تو بڑی پریشانی ہوتی تھی. جی خیر وہ جا کر کے دیا تو ماسٹر صاحب کو بھی کچھ شک ہو گیا. وہ لا کے والد کو دکھلائی تو والد جب دیکھیں تو بہت ہنسے. جی آج کے بعد لائن کے نہیں سمت کیا کروں. آپ ہم کو ناراض ہوئے؟ ناراض نہیں, مطلب ایسے ڈانٹے پیار سے. آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ناراض, تو ہم کہتے ہیں کہ نہ وہ 100% خوش ہوئے. جی خوش ہوئے 100% کا ہے کہ وہ میرے استاد نے واقعی وہاں پر غلط لکھا تھا, اور آپ نے اصلاح کر اور دیا. ہم نے جو اصلاح کر دیا تھا وہ صحیح اصلاح تھی. مطلب آپ استادوں کے استاد ہو گئے. سر آپ نے ابتدائی تعلیمی اور تربیتی مراحل کب, کہاں اور کس طرح طے کیے؟ میرا یہ حال رہا ہے کہ کتاب یہ ہوا ہے, 2 تیسرے میں بچے لوگ جو پڑھنے کے لائق ہو جاتے تھے وہ بیٹھا دیتے تھے. مجھ سے
छोटे बच्चे जो शुरू से जाकर बैठा देते। तो यही हुआ। तो हमको मामू रिश्ते में लगते थे, चचा भी दूसरे रिश्ते से लग जाते थे, तो हर तरीक़े से ही ताल्लुक़ था। तो जाके वहीं अम्मा ने बैठा दिया कि पढ़ा दीजिए इसको। तो उन्हीं के हम पढ़ा क्या, वो किताब एक लड़के की ले करके उन्होंने रख लिया। और थोड़ी जब तक वालदा ही से उर्दू लिखना पढ़ना हम सीख लिया था, तो उसके उर्दू का जो टेक्स्ट बुक था वो दे दिया हमको कि थोड़ा थोड़ा तुम जब छुट्टी हो जाए 12 बजे तो इसको लिख लिया कर, नोट कर लिख लिया कर। तो 1.5 घंटा 2 घंटा उस किताब को हमने नकल किया था, पूरी किताब को। और वहीं बैठ करके 10-20 रोज़ लगा उसमें पूरी किताब नकल करके। जब पूरा क्लास उसको साल भर में पढ़ता था तो 20 रुपये में पूरी किताब तो हम लिख के तैयार हो गए। तो जो सैयद जमील साहब थे, हाँ, वो भी शायर थे क्या? नहीं, बिल्कुल शायर नहीं थे। अच्छा। और जब थोड़ी बहुत करते भी होंगे तो उनका रोब और दबदबा पूरी बस्ती में इतना ज़बरदस्त था कि बड़े लोग बहुत नौजवान लोग उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। हम लोग को क्या सबक पैदा होता, इसलिए। तो सर ये प्राइमरी एजुकेशन आप उनसे? हाँ, प्राइमरी एजुकेशन तो थे ही। तो हम प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम बाहर के जाते, जब बस्ती के वो टीचर हैं। तीसरा क्लास यहाँ से पढ़ लिया हमने तो इतनी सलाहियत हो गई थी कि उर्दू की किताब पढ़ नहीं सकता। उस वक्त हमें वालदा ने भेज दिया बाबू मुश्ताक अली ख़ां के यहाँ। बाबू मुश्ताक अली ख़ां वालिद के शागिर्द थे। तो बोले वह वालदा बोली हाँ MLA खाली उनको मत कीजिए, वो बाप दादा के से ज़मींदार थे। उस इलाक़े में उतना बड़ा ज़मींदार कोई नहीं था। तो हम जाके जब वहाँ खड़े हो गए, बतलाया कि हम हमज़ापुर से आ रहे हैं। तो चूँकि वालिद से मुश्ताक अली ख़ां ने भी पढ़ा था, इस लिहाज से वो हमको भाई कहते थे। तो बड़ी इज़्ज़त आबरू वहाँ भी हुई, मतलब गुरु भाई। हाँ, गुरु भाई हो गए। और फिर टीचर लोग सब ये करते थे। तो हम लोगों को उसकी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। और वहाँ से आए तो हाई स्कूल में चले गए सीधे। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम कौन हो, भी नहीं पूछ सकते थे। हेड मौलवी साहब जान रहे हैं, सेकंड मौलवी साहब जान रहे हैं, ये सब जान रहे हैं। टीचरों ने ही मैनेज कर लिया कब एडमिशन होगा, कैसे होगा, एडमिशन का पैसा कौन देगा, ये भी ना हम जानते हैं, ना मेरे वालिद जानते हैं, ना कोई जानता। किसने दिया? ये बेचारे हेड मौलवी मखदूम रज़ा साहब कभी दे रहे हैं, कहीं मौलवी अहद खां बार हुसैनगंज वाले दे रहे हैं, कभी 1-2 लोग और दोस्त दे देते हैं। तो ये सब होता रहा। गया कॉलेज से निकले तो पैदल जाए तो 2 मील जा रहे हैं मारूफगंज में रहना। और कैप्टन शाहजहाँ के यहाँ उस वक्त रह जाना। तो शाहजहाँ जो ये थी शख्सियत थी उस वक्त, वो कलकत्ता का वो क्या कलेक्टर जो कहते हैं गया का, वो कलेक्टर भी जब आता था उसके कंपाउंड में तो हैट उतार के आता था। ये कैप्टन शाहजहाँ का रुतबा था गया का। और उसके यहाँ हम पढ़ाते थे उसके बच्चों को ट्यूशन। तो हाँ, ट्यूशन। तो ज़रूरत ऐसी होती थी कि अगर कभी पैदल जा रहे हैं मारूफगंज से कॉलेज, दूर पड़ता है थोड़ा, तो बीच में अगर कोई अपनी जीप पर या टैक्सी पर या किसी भी गाड़ी पर अगर कोई अफसर चला जा रहा है तो उसमें अगर देख लिया तो रोक देता था। मास्टर साहब आइए, कहाँ जाइएगा? गया कॉलेज जा रहे हैं तो जाइए, या डेरा चाह रहे हैं तो पहुँचा देता था। वो करते रहे कि जाके प्रिंसिपल को कॉलेज का कह दिया कि हम कैप्टन शाहजहाँ के लड़के को पढ़ाते हैं, उनका ट्यूटर है उनका। तो फिर ना पूछे तो हमारा फिर शिप हो गया। अच्छा, नहीं। आपके अखबारों और रिसालों में छपने का सिलसिला कब से शुरू हुआ? आबशार कलकत्ता। अच्छा। तो अनवार मामू करके हमारे एक मामू थे रिश्ते के, तो वो वहाँ काम करते थे समझाना। तो उन्होंने जिक्र किया होगा कि मेरा भांजा, मेरा भागना है, लिखता उखता। तो उन्होंने कहा कि आइएगा तो कुछ लेते आइएगा। तो जाने लगे तो वो नज़्म कभी कुछ मांग के ले जाते थे। तो पहली नज़्म आपकी हाँ, वही आबशार कलकत्ते में छपी। अच्छा। सर, आपने उर्दू अदब के कई सिन्फ पर काम किया है, तो आप अपनी बातों को सबसे बेहतर ढंग से किस विधा में रख पाते हैं? आपको तसल्ली
अपने कौन से फन में महसूस होता है? रबाइयों में, जी रुबाइयों में अच्छा एक सिन्फ है रुबाई, जी वो सबसे अच्छा किया और सबसे ज़्यादा काम किया और सबसे ज़्यादा उसी फन में मशहूर हुए। मैं हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान में, मैं जहाँ जहाँ लोग इसको जानने वाले लोग हैं। एक किताब आई थी आपकी, रुबाई की आबरू है नावक हमजापुरी, लेकिन आपके ज़माने में या हर ज़माने में, जैसे उस ज़माने में अल्लामा इकबाल या मिर्ज़ा गालिब या फैज़ अहमद फैज़ या खय्याम की रुबाई मशहूर थी, तो क्या किसी से मुतासिर हुए आप? ऐसा देखिए, ऐसा ये हुआ कि मुतासिर तो सब हुए, बल्कि बाज़ रुबाइयों में लोगों ने शक किया कि किसकी, लगता है कि इकबाल की रुबाई है, तो उसी वक्त मेरा कलेजा बहुत बड़ा हो जाता था। अच्छा सर, अभी हाल के दिनों में बशीर बद्र हैं या निदा फाजली हैं या मरहूम राहत इंदौरी हैं, मनव्वर राना हैं, ऐसे लोग जो दुनिया भर में मुशायरों में जाते हैं, पढ़ते हैं और कहें तो मुशायरों से लाखों कमाते हैं, तो आप उनकी शायरी को किस तरह देखते? नहीं जा सके उस लाइन पर, जी इस लाइन पर हम नहीं जा सके, इसका हमको अफसोस नहीं है। इतना कमाया कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, ये न शायरी में हम किसी के शागिर्द हैं और न शायरी में ज़बरदस्ती किसी का उस्ताद बनने की कोशिश किया। लोग जो देखते थे, नाम सुनते थे, अखबारात में जो पढ़ते थे, रसाले में जो पढ़ते थे, उस सुनकर ही लोग जैसे सुन लेते थे कि नावक हमजापुरी है, वैसे ही करनी काट लेते थे। हमको कहा ज़रूरत है कि जब छेड़ के कैसी टिक्की करने की। आज भी आप कहीं चले जाइए, नाम ले लीजिए, तो मेरा नाम बदगुमानी से नहीं लेगा, आता नहीं, बाहर जाने का कि हाँ साहब, ऐसी बात नहीं है। सब आम आदमी से ये उम्मीद नहीं है कि 100 150 किताब का मुसन्निफ होगा। जी ये तो किया, जी हमको क्या जरूरत है? आप इस पर एक फिर किताबें आ गई, किताब आ गई तो दूसरे की तो लिखी हुई नहीं है तो कोई आवे। आपकी निगाह में कामयाब इंसान कौन है? खुद पर जो भरोसा करता हो, खुद पर जो भरोसा कर ले, उसके ऐसा आदमी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरे के जो भरोसे है, उसका आदमी का काम हमेशा डामाडोल होता रहेगा। तकदीर है तो अच्छा भी हो गया। चलिए सर, हम उस शागिर्द की तरफ लौटते हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान के लोगों का इस्लाह करते हैं, उनकी तख्लीकात का, उनके अशार का, तो कोई नामवर जो लोग हैं हिंदुस्तान के, ऐसे कुछ नाम आप बताएं जो मशहूर नाम जो आपके शागिर्दों में गिने जाएंगे, ऐसे नाम कुछ? नहीं, देखिए असल मेरा अपना ये रहा कि हमने किसी को शागिर्द न समझा ना शागिर्द कहा, खुद लोग कहते रहे तो अपना कहते रहे। जिन लोगों ने लिख दिया है अपने बायोडाटा में कि हाँ हमने नावक हमजापुरी से इस्लाह ली, हमने उनको कैंसिल भी नहीं किया, समझा के। और जिन्होंने नहीं लिखा तो उसको तो हम ही छिपा दिया। सर, कई डॉक्टर, प्रोफेसर, बड़े ऑफिसर आपके पास अपनी तख्लीक को इस्लाह के लिए भेजते हैं, तो क्या उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि आप सिर्फ एक मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रहे? वो चाहे अपनी इंसल्टी फील करते हों तो करते होंगे, लेकिन उनका जो बहुत सस्ते में काम फ्री हो जाता था तो उसका तो एहसान नहीं मानते थे लोग, समझा रहे, तो वो भी एहसानमंद होते थे। आप पे कई लोगों ने पीएचडी भी किया है, उसके साथ साथ आपको दुनियाए उर्दू में शोहरत हासिल है, आपकी चीज़ें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि ईरान में भी छपी है। तो इतनी बड़ी सलाहियत रखते हुए आप सिर्फ एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे, तो क्या इसका आपको मलाल नहीं है कि आप कुछ और बड़े ओहदे तक पहुँचते? आप समझ जाइए, हमको मलाल नहीं हुआ, बाद में हमको अफसोस इसका हुआ कि अगर हम थोड़ा सा संभल के रहते और उस चीज़ को बजाय खुद इस्लाह करके दे देने के वालिद को दिखला लेते तो और बेहतर मेरी इस्लाह हो जाती है और बेहतर हम तरक्की कर सकते हैं। सर, कुछ अलग सवाल। आप 1933 में पैदा हुए और 1953 में आपकी शादी हुई, तो ग़ालिबन 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है। तो इतनी कम उम्र में शादी होने का क्या मतलब है? ये आपके पसंद की शादी थी या फिर घर वालों के दबाव में ये शादी? क्या वजह होती है? कम उम्र में शादी होती है? कम उम्र में शादी है कि
वालदा के जो बहन थी उनकी लड़की। अब यह है कि उनको परेशानी है तो है बूबू ऐसा कर लो, फरना करो, ढकना कर लो, तो बूबू और बूबू तैयार हो गई तो बाबू क्या करेगा? बाबू क्या करेंगे? बाबू क्या करे? बाबू तो दिल में सुन सुन के खुश हो था कि चलो कि जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ, तो ये हुआ। तो ये हिम्मत नहीं थी कि हम उसको इनकार कर दें, चाहे ये कर दें। बाप माँ जहर भी दे देते कि खा लो, तो ना पूछते कि जहर है कि मिठाई है, खा जाते। क्योंकि अच्छी ये बताइए, आपकी नौकरी शादी के 3 साल बाद लगी हाँ मेरे हिसाब से। हाँ मैंने जो देखा है आपके बायोग्राफी को, हाँ। तो नौकरी आपकी शादी के 3 साल बाद लगी है। तो क्या उस वक्त आप कोई काम में लगे नहीं थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं नहीं थी? नहीं, हम वो तो शादी के लिए लोग तैयार कैसे हो गए? आप शादी की ज़रूरत के लिए तैयार नहीं होने का सवाल नहीं है। कहा ना कि वालदा के बहन की बेटी थी, उसके बहन को अपने बेटी की शादी करनी थी। वो अपने बहन से बोली, बहन हाँ कर दी। तो हम तो यही कहते होंगे उस वक्त में भाई कि यार जल्दी हो जाए हमको क्या ज़रूरत है उसमें अरंगा अटकाने की। सो बात हुई जी, क्या बात। सो अपना ये हुआ बाबू। 1956 से अब तक नज़्म व नसर की बेशतर असनाफ पर आपकी 100 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं और ये सफ़र अब तक जारी है। तो क्या आपकी जो ये विरासत है ये आपके बच्चों तक पहुंची? आई है, लेकिन हम चूँकि होल टाइमर थे, और दूसरी बात यह है कि बच्चों ने अगर कुछ ला करके दिखलाया कभी तो उसको लेकर कर देख ले, हाँ पेन दो, तो देखकर जहाँ जहाँ गलत है बगैर उनको बताए हुए कि काहे गलत है लिख के दे दिया उनको। तो बच्चों में सलाहियत थी, उतना देखा, उन्होंने पढ़ा, समझे। नहीं आया तो फिर ज़रा सा बहुत लड़के जो मुँह लगू हो जाते थे, जाकर पूछते या भाई कैसे हुआ, उनको वैसे। क्या इस विरासत को आगे ले जाएंगे? हाँ, अब बच्चे के बच्चे भी माशाअल्लाह अब किसी क्या उर्दू अदब में क्या उनका नहीं है, उर्दू अदब में नहीं पढ़ सके जी? उर्दू अदब में नहीं। मुझे जहाँ तक मालूम है कि शुरुआती दिनों में या आपके कुछ अशार ईरान के भी रिसालों में वो शाया हो चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि कुछ फ़ारसी शेर हमारे सामईन को सुनाएं। और थोड़े से उज़्र के साथ अर्ज़ करता हूँ कि फ़ारसी में लगातार अशार मैंने नहीं कहे। वालिद चूँकि पूरे हिंदुस्तान में फ़ारसी के बड़े दक्काक़ उस्ताद समझे जाते थे, इसलिए उनके इंतकाल के बाद बहुत सी फ़ारसी की ज़रूरियात के लिए बाहर से भी लोग चले आते थे और ये चाहते थे कि हम उनका काम कर दें। उस हालत में हमको फ़ारसी की तरफ भी रुजू करना पड़ा और फिर वक्तन फ़वक्तन चंद तख्लीक़ात फ़ारसी में भी होती गई। उन्हीं में से चंद अशार एक गज़ल के अर्ज़ करता हूँ, गोश फरमाइए। नमी गोयम के दर सहराए नफ़रत नोके खारे शौ। असल बात है कि हमारे पास कुछ नौजवान लड़के भी हैं और हमें पूरी तरह यकीन नहीं होता कि यह सब फ़ारसीदा होंगे, इसलिए उनकी सहूलत के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि नमी गोयम के दर सहराए नफ़रत नोक खारे शौ बरो दर गुलशन महरो मोहब्बत गुल अज़ार शौ। मैं नहीं कहता कि सहरा में जाओ और नोक खार बन जाओ, कांटे की नोक बन जाओ, नहीं, बल्कि गुलशन में चले जाओ और वहाँ जा कर के फूल की कली बन जाओ जी। और दूसरा शेर कहेगा मिसाल कतरा शबनम, मिसाल कतरे शबनम न रहने इंतशार शौ। मिसाल कतरे शबनम न रहने इंतशार शौ बशो यकजा मिसाल बहर ना पैदा किनारे शौ। मिसाल कतरे शबनम, शबनम के कतरे की तरह इंतशार में छितरा मत जाओ, उड़ मत जाओ, धूप लगे उड़ गए जी। बचो जाओ एक जगह यक जा हो जाओ, मिसाल बहर ना पैदा किनारे शो, बल्कि एक जगह एक बहरा एक नदी की तरह एक हो जाओ सब मिल करके जी। और दरिया की तरह ना पैदा किनार हो जाओ।
नमी गोयम के मिसले आफताब शोला बारिश हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आफताब की तरह आग बरसाने वाले हो जाओ, नहीं कहता हूँ कि आफताब की नमी गोयम के मिसले आफताब शोला बारिश हो। बराह खस्तगां दस्ते हस्ती शाख सारे सौ। बसारे खस्तगां जो लोग थके हारे हैं उनके लिए घने पेड़ की ठंडी साया हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। सर आपकी एक हिंदी में दोहा संकलन सौगात आई थी, फिर एक शेरघाटी के इतिहास पे एक किताब आई थी शेरघाटी एक संक्षिप्त परिचय। तो आप उर्दू और फ़ारसी में महारत रखते हैं, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत का ज्ञान कैसे मिला आपको? बातें दोहे की या हिंदी की सिर्फ इतनी है बाबू के वाक़या ये है कि घर से घरेलू तौर पर हम हिंदी पढ़ के नहीं निकले थे जी। हाई स्कूल तक भी जो पढ़ा सो हिंदी विंदी से कोई वास्ता हमको नहीं रहा जी। इत्तफाकन ये हुआ है कि पोस्टिंग जो हो गई उस वक्त आईए पास करने के बाद जो हुई तो हाई स्कूल में न हो करके मिडिल स्कूल आमस में पोस्टिंग हो गई बहैसियत हेड मास्टर। अब बहैसियत हेड मास्टर जब पोस्टिंग हो गई तो काम हिंदी में करना पड़ा और ये मेरे लिए मुश्किल काम था क्योंकि सामने जब मुश्किल आ गई तो उससे अल्लाह के फजल करम से हमें न डर पैदा हुई न कोई खौफ पैदा हुआ। उस वक्त एक किताब मिलती थी 5 आने को, हिंदी सीखो जी। तो हिंदी सीखो किताब वो 5 आने में ले आए और काखा गागा अंगा सीख लिया पूरा और फिर वो आकारी का जो है वो मात्रा लगाने का जो सीख लिया। तो उसके बाद तो फिर हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क मेरे सामने रह ही नहीं गया। आप जो बोलते हैं उसको हिंदी लिपि में लिख जाइए तो हिंदी है, उसी को फ़ारसी लिपि में लिख जाइए, अरबी लिपि में लिख जाइए तो फ़ारसी है। हाँ, तो ये चंद दोहे हैं आपकी खिदमत में। तो अर्ज़ किया है कि बातों से तो धर्म की थकती नहीं ज़बान, बातों से तो धर्म की थकती नहीं ज़बान, लेकिन धर्म के मर्म का हासिल हुआ न ज्ञान। क्या बात है, मर्म का ज्ञान तो हासिल नहीं हुआ, लेकिन ज़बान नहीं थकती है, बोले जाओ। बातों से तो धर्म की थकती नहीं ज़बान, लेकिन धर्म से मर्म का हासिल हुआ न ज्ञान। दूसरा है कि दौड़े जाते हैं अगर नई सदी की ओर, दौड़े जाते हैं अगर नई सदी की ओर, कदम न बढ़ने दीजिए कभी बदी की ओर। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा दोहा है और ख़ास करके ये कि दोहा कहने से ही फ़ौरन ज़हन ये चला जाता है कि ये हिंदी या संस्कृत ज़बान हो गई। लेकिन इत्तेफाक ये है और मेरा अपना भी तजुर्बा ये है कि हमने जिस कदर भी दोहे कहे हैं वो हिंदी से करीब हैं। बाकमाल रुबाई गो शोरा में आपका नाम मुल्क के चंद शायरों में शुमार होता है, तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी कुछ रुबाई, कुछ शेर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी आपकी ज़बानी सुन लें। तो सर इरशाद। आपने इस धूप में हमको बुला लिया हमजापुर से। वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब लोग कह उठेंगे कि अब नाव के पानी न रहा, कह उठेंगे कि अब नाव के पानी न रहा, बचपन न रहा, दौरे जवानी न रहा, पीरी में जवाज़ शादमानी न रहा। वो दिन भी बहुत दूर नहीं है जब लोग कह उठेंगे अब नाव के पानी न रहा। शेर में तो मैं गमज़दा हो जा रहा हूँ सर। हाँ, कोई गमगदा होने की ज़रूरत नहीं है, अभी जिएंगे घबरा हुआ इंशाअल्लाह। और ये चंद अशार हैं। जी इरशाद। सुखनवर ही
सुखनवर ही इस रमज़ को जानते हैं, सुखनवर ही इस रमज़ को भेद, जी सुखनवर ही इस इस रमज़ को जानते हैं। सुखन परवरी पन्न शीशा गरी है, सुखन परवरी पन्न शीशा गरी है, बहुत नाजुक फन है, जी जी इसलिए दावा मैं नहीं करता हूँ, फिर भी जो है वो कोई आपके सामने है। हर बिसाते फ़िक्र फन आई ना आसा हो गई, वो नज़र नावक को कौसे दीदावर देता गया। इमरान अली साहब ने कहा है, लेकिन मैं साद बनाता हूँ इस पर, जो कुछ लिख दिया है इन्होंने, यह मुनासिब है। नावक खुद अपनी शम जलाने का अहल है, नावक खुद अपनी शम जलाने का अहल है, क्यों तुझसे ये कहे कि उजाला हमें भी दे, क्या क्यों तुझसे ये कहे कि उजाला मुझे भी दे, हमें भी दे नहीं। कि अशात शुरू हुई कम अज़ कम पूरे वतन, हाँ, हिंदुस्तान में किसी भी उर्दू के शायर ने ये दावा करने की जसारत नहीं की है कि वो नावक हमज़ापुरी से बेहतर रुबाइयाँ कह सकते हैं। बहरहाल अल्लाह का एहसान है। न पूछे आप क्या तर्ज़ सुखन, क्या रंग है मेरा, कि दुनियाए अदब में मुद्दतों से रंग है मेरा, कि दुनियाए अदब में मुद्दतों से रंग है मेरा। जी बिल्कुल। कि तस्लीम के हम लाल न गौहर की तरह हैं, लाल एक ये होते हैं, हाँ, तस्लीम एक धात होती है, तस्लीम के हम लाल न गौहर की तरह हैं, पत्थर हैं, पत्थर हैं तो बुनियाद के पत्थर की तरह हैं। क्या बात, कि कैसे नज़रअंदाज करेगा कोई हमको, कैसे नज़रअंदाज हमको, कैसे माना, क्या बात, हाँ, कैसे नज़रअंदाज करेगा कोई हमको, हर राह में हम मील के पत्थर की तरह हैं। क्या बात है, वाह, हर वाह, राह वाह, में, वाह, 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 हर राह देखना ही पड़ेगा कि हर राह में मील की, हर राह में, हर राह में, हर रास्ते में जी जी मील के पत्थर का मेरे सिवा, देखना ही है। हाँ देखना ही है ना, तो रास्ता भुला दोगे ना। कैसे नज़रअंदाज करेगा कोई हमको, जी। हर राह में हम मील के पत्थर की तरह है। क्या बात, बहुत अच्छा शेर। और ये एक शेर देखिए, बदल नहीं कोई खाके वतन की खुशबू का, वतन की मिट्टी में जो खुशबू है जी उसका कोई बदल नहीं है। बदल नहीं कोई खाके वतन की खुशबू का, ख़ता में जाके रहे या कोई खुतन में रहे, क्या बात, किसी मुल्क में जाके रहो, लेकिन वतन की मिट्टी की खुशबू का कहीं जवाब मिलने वाला नहीं है। वाह, वाह, अर्ज़ किया है कि ढील पाते ही इसी ज़ोर से उछलूँगा भी, अच्छा, ढील पाते ही इसी जोर से उछलूंगा, ज़ोर से उछलूँगा भी, जितनी ताकत से ज़माने ने दबाया है मुझे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त, वाह 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 वाह। ढील पाते ही हाँ, उसी ज़ोर से उछलूँगा भी, जितनी ताकत से ज़माने ने दबाया तो है मैं मुझे। भी अपने आप को इस शेर में देख रहा हूँ। तो मुझे अपना स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है आपके माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ ये देखिए, ये ज़रा सा जी। इश्किया शेर है जरूर, जरूर। जो हमारी जी ज़बां की नानुकुर नफ़ी के इजहार को कहते हैं। ज़बां की नानुकुर नामोतबर है, नामोतबर है, हाँ, ज़बां की नानुकुर नामोतबर है, निगाहों में लिखा इकरार पढ़ना, क्या बात है, निगाहों में लिखा इकरार पढ़ना, अगर हो हौसला पढ़ने का नावक, क्या बात है। अगर ये हो, शेर तो कई बार मैंने दोहराया भी है। बहुत अगर अच्छा हो है। हौसला पढ़ने का नावक, हमेशा वक्त की रफ्तार पढ़ना, दोबारा इरशाद इस शेर को एक बार। अगर हो हौसला पढ़ने का नावक, हमेशा वक्त की रफ्तार पढ़ना, हमेशा वक्त की रफ्तार पढ़ना।
अब आगे क्या हो, जी जुल्म व जहूल से उम्मीद, दुनिया से जी। अब आगे क्या हो, जुल्म व जहूल से उम्मीद, अभी तक आदमी ज़्यादा जब आदमी न हुआ। क्या बात है। अगला शेर है कि पहले अपना भी खुदा था, कोई किसको याद है, जी आदमी का आदमी ही अब खुदा होने लगा, क्या आदमी का आदमी ही अब खुदा होने लगा, पहले अपना भी खुदा था, किसको किसको याद। अक्कासी है आपके इस शेर में। हाँ, कहने से तेरे हमने तो रखी ज़बान, कहने से तेरे हमने तो रखी ज़बान बंद, जी कहने से तेरे हमने तो रखी ज़बान बंद, लेकिन सदाए हक़ हुई जाती है खुद बुलंद, लेकिन सदाए हक़ सच्ची बात जो है खुद वो बुलंद खुद बुलंद होती है, क्या बात किसी है, के बहुत करने अच्छा। से नहीं होती। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।